मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पहली बार मिल रहा है तो गुड मॉर्निंग ही होता है, चाहे रात में ही क्यों ना हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। आज बहुत सारे ऐसे आप लोगों से मिले हैं, लेकिन आज मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनको मैं बचपन से देखा हूँ और बहुत प्राउड फील होता है। आप लोगों ने सैनिक स्कूल का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? जहाँ बच्चों को बचपन से इस सैनिक में जाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, और एक गुड़िया है अभी जो ऑलरेडी सैनिक स्कूल केरल में अभी क्लास 8 में है, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तो मैं चाहूँगा इनकी जर्नी के बारे में कुछ 2-4 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबका सपना था कई लोगों का, और जो कई लोगों का है जिनके पेरेंट्स है या फिर मतलब जिनको भाई बहन है जो सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटा सा क्वेश्चन, और उससे पहले चाहूँगा कि पहले गुड़िया अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दे प्लीज। मेरा नाम गौरिका साहू है और मैं अभी 8th क्लास में जाने वाली हूँ सैनिक स्कूल कलकुट्टा में, केरला में। मेरा एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था 6th स्टैंडर्ड में। मैंने एग्ज़ाम दिया था 6th का, उससे पहले जब मैं 5th पढ़ रही थी। मैंने ये एग्ज़ाम वहाँ विशाखापट्टनम से लिखा था, फिर उसके बाद हम लोग मेडिकल्स के लिए गए और फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे पूरा नेशनल डिफेंस एकेडमी का सेम रूटीन फॉलो होता है, सेम टू सेम पूरा रूटीन, पीटी, फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ। वहाँ पे मेन एम हम लोग का एनडीए है, और स्पेशल 11th और 12th स्टैंडर्ड में सबके लिए एनडीए क्लासेस लिए जाते हैं, बाहर से स्पेशल टीचर्स मिल जाते हैं। पूरा मतलब वहाँ पे मेन फोकस एनडीए है। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग का लाइफ का मेडिकल सेट हो जाता है। पूजा प्रॉपर इंग्लिश में बात करो आज, तुम्हारे लिए एकदम बिल्कुल। हेलो, शट अप। Are you joining MBA? Me, Yes. it's my aim. I wish to be an officer. Any reason? Nationalism, patron. I'm Yes, sir. patriotic. Okay. And what is your goal? I mean, To serve my nation mainly in any way possible. nice. गुड, थैंक यू। आ जाओ, कम पढ़ाए आ जाओ। इससे भी क्वेश्चन कर सकती हो, अभी क्लास 1 में जाने वाली है, अल्टीमेट ये भी अभी सैनिक स्कूल में जाने वाली है। So what's your main motivation to join NDA? Which is inspiring to you? My father has also been an officer. He was in the Navy. Then I have grown in that Navy background, and I always took inspiration from all the things happening around me. It made me feel so proud that all the people around me are serving the nation. So it inspired me to do something for my country. Then as I grew up, I came to know about NDA and stuff. And it was an easy way for me to enter to the defense, and it would be an easy path. So that way I felt I could join there. When I came to know about Sainik School, then I asked if I could do it. Then they said, you try. If you can, that will be good. Then I tried and I joined. And where was your downfall motivation motivates? मतलब आपका जब downfall और आता था आपको क्या motivate किया grow up करने के वापस? My mistakes. I felt I should recover from my mistakes. Like the silly mistakes which I could have done, like I could have just covered it up. By covering up those mistakes, I could have reached something, my goal or something. The mistakes which I had done, which made my downfall, I felt if I could just cover them and not do them again, I could have just reached my goal. So that just encouraged me to do it again and थैंक यू। After 10th, what are the steps to join NDA? After 10, you do 11th, 12th,
much dedication you put in your studies, that will be. Anybody was? Some question? Are you motivated or disciplined? Little bit of both. I have no question, but I am inspired from you. It's okay. Thank you. Good. कुछ संदेश देना चाहोगी? Any message? I think all my brothers and sisters here are in 11th or 12th something. Yeah. I hope you all study well, and I think you all are also aiming for NDA itself. Yes. I hope you clear your exams and become an officer. Yes. Anyway, you guys will be becoming before me. So I hope we'll meet again, and that day I'll congratulate you. Thank you. अभी आप लोग मेरे को ही देखते हैं एनडीए नेवी के, तो आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा। हम जो साथ में रहे छत्तीसगढ़ के ही थे प्रॉपर, और वहाँ जाने के बाद मौका मिला कहाँ, मुंबई में, जब हम पता चला कि हम दोनों छत्तीसगढ़िया हैं। तो प्लीज़ कम संजय साहू। संजय इनके बारे में बता दूँ, जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने टोटल 22 कंट्रीज किए, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा काफ़ी कवर किए। और जो सबसे बड़ा जहाज INS विक्रमादित्य, अभी विक्रम में थे, लेकिन अभी उससे पहले हमारे विराट, तो सर इसमें पूरा विराट में सर्विंग किए। और अपनी जर्नी के बारे में चाहूँगा थोड़ा सा दो सब। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद सर। आप लोग के अंदर मोटिवेशन की कमी मिल रही है, आपको सर से मोटिवेट नहीं हो रहे। मैं देखा इन्होंने आते ही जय हिंद किया, न कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, कोई मतलब शर्मा रहे। सर अपना फुल डेडिकेशन देते हैं। मैं इनसे हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी क्लासरूम में रहते हैं, कभी मतलब इनका इतना बिजी शेड्यूल है। ये अपना अभी गवर्नमेंट जॉब में है, ये भी है ना, मालूम ही होगा। Yes. वहाँ से टाइम निकाल के आप लोग के लिए आते हैं, फिर भी मोटिवेशन की कमी दिखती है। इनके जैसा कोई मोटिवेटेड नहीं रहता सर के। हम तो खुद इनसे मोटिवेशन लेते हैं कि सर आप जब इतना कर सकते हो तो हम भी सेकेंड लाइफ, मैंने इनको ही देख के मतलब अपना सेकेंड जर्नी चालू किया है, ये मान सकते हो। ये जब ये रायपुर में थे, मैं रिटायर होने के लिए सोच रहा था, तो बहुत स्ट्रगल की अपने लाइफ में। और अभी भी देखो 45-50 हो गया इनको, फिर भी इनके अंदर इतना जोश है। आप लोग के अंदर जोश डालने के लिए कम ही लग रही है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फौज में जो जाते हैं उनके अंदर जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जोश है तभी आप मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, बोल सकते हो, हिचकिचाहट बंद हो जाती है। आप भी कुछ नहीं पूछे, लड़कियां तो फिर भी आप लोग से आगे दिख रही थी। पूछना चाहिए, है ना। और ऊपर से आप एनडीए के लिए यहाँ क्लासेस ले रहे हो, बहुत मोटिवेशन की जरूरत है कि नहीं? यस सर। मोटिवेशन की बहुत कमी लग रही है। और ऐसे सर आप लोग को मिलना, किसी को मतलब इस छत्तीसगढ़ में, मतलब रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ना, मुझे नहीं लगता आपको और कोई सर मिलेंगे हाईली मोटिवेटेड। तो आप पूरा इसको यूज करिए। इनके सारे स्टडीज मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग टू अदर्स। आपने गैलरीज में फोटोज देखे होंगे, कितने लोग इनसे मतलब इंस्पायर होते हैं, इनको अप्रिशिएशन करते हैं। तो ऐसे ही मतलब कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता, धीरे धीरे ग्रो करते हुए यहाँ तक पहुँचे। मैं खुद इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैं इनसे काफ़ी जूनियर हूँ, करीबन 5 इयर्स जूनियर हूँ। और हम मुंबई में मिले थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन बाई सर नेम जैसे साहू लिखा रहता ना, मैं तो सर आप कहाँ से हो करके, तो मैं छत्तीसगढ़ से, मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, ऐसे करके फिर छत्तीसगढ़िया में चालू हो गया। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मिलते नहीं है। इसमें आप लोग छत्तीसगढ़िया कितने लोग हैं? सारे? नहीं, झूठ। नॉन छत्तीसगढ़िया? अच्छा, ठीक है।
तो आपको छत्तीसगढ़ के बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बहुत मतलब अपने छत्तीसगढ़ को लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते। अभी तो चेंज हो रहा है, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ 2000 एंड बिफोर, मतलब 2007 तक भी बहुत कम लोग आते थे छत्तीसगढ़ के। और उसमें भी डेयर करना छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं उस समय, और छोड़ के आके फिर यहाँ पर फाइट करना अगेन। तो सर से ही हमने बहुत कुछ सीखा है। फिर हम मुंबई में थे काफ़ी दिन तक एक दूसरे से, इवन हमारी जो भाभी जी वाइफ एक दूसरे को फिर पहचानने लगे एक दूसरे से। मेरी छोटी गुड़िया वहीं हुई, ये बड़ी वाली वहाँ इनके ही मतलब ये बोल सकते हो कि एक दूसरे को जानते थे और हम किसी को नहीं जानते थे। ऐसे काफ़ी है मतलब पर्सनल भी बहुत हेल्प किया सर ने, आना जाना हेल्प करना। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको छोड़िए। आपका जो अभी एनडीए का है, बेसिकली आपको मोटिवेटेड रहना है ना। जितने भी यहाँ वीडियोस दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। मैंने भी अपने बच्चे को इसीलिए भेजा है कि उसको एक्सपोजर मिले। तो आपको भी जो एक्सपोजर मिल रहा है ना, उसको फुल्ली यूटिलाइज करिए, ताकि आगे लाइफ कहाँ लेके जाती है ना। Yes. और लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगी अगर इसमें से आप में से कोई भी सेलेक्ट हो गया एनडीए के लिए या फिर अग्निवीर के लिए, एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आप जो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ आ जाओगे। तो उस समय आपको अपने सर को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप उनके वजह से हुए। कभी भी मतलब आप सर से इतने ऊपर चले गए, मान लो मैं भी पीएससी के लिए फाइट कर रहा हूँ, मेरा प्री क्लियर हो गया है ना, जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में ज्वाइन किया हूँ। फिर भी मैं पीएससी वगैरह देते रहता हूँ, यूपीएससी वगैरह देते रहता हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ। मान लो मैं कल के दिन कुछ बन गया, सर से और ऊपर चले गया, तो उस दिन भी मुझे सर को बोलना है, सर नहीं मैं आपके साथ ही हूँ। सेम वे आपको भी आना है यहाँ पर, मोटिवेट करना है। जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट हमेशा कायम रहनी चाहिए, क्योंकि इनके वजह से आप वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। और कुछ किसी को पूछना है? Shall we? हाँ